ठीक है भैया। लाइव होने के लिए लाइव होने ठीक है। अरे भाई जल्दी चल। Plus we have a morning tea and snacks. So go and please take your morning tea and snacks. Thank you. जी भी मौजूद है। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा, फॉर्मर दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर सेन, फॉर्मर दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट।
empowering generations. And today we are gathered here to celebrate those very minds who have dedicated their lives to this mobile mission. Well, my name is Anka Rimjim Dubey. I am your host for the day. On the behalf of National Skill and Vocational Education Council, education of our esteemed dignitaries. Education becomes impactful when knowledge by Dr. Ravi Dubey, State Vice President, National Integrated Medical Association, NEMA, former Delhi State President, Dr. Sel, former Delhi State President, Joint Action Committee of ISM Doctors. I request you, sir, to please join us on the stage. It's like to extend a warmest welcome and felicitate you on the stage on the behalf of NSVEC National Education Summit 2025. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर रवि दुबे जी के लिए जो हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज for the uninterrupted experience throughout the event. Thank you. हमारे बीच में कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट भी यहाँ पे जुड़ेंगे. Our special dignitaries who have just flown from. Can we have some music, please? पीछे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे. नेक्स्ट भी आप मिस्टर इकराम चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, चीफ एडिटर है न्यूज नेशनल के. सर, आपको भी बहुत बहुत मंच पर स्वागत. Thank you so much, everyone. Thank you, Mom. नमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठी हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब ये गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत जय 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 हे. Thank you, everyone. I request everyone. समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. ईरान से आए मुख्य अतिथि का अपने देश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके साथ आए सभी अतिथियों का, शिक्षावादियों और साथियों और मीडिया गण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि यहां होने वाली चर्चाएं सुझाव और शिक्षा की जगत को नई ऊंचाई देंगी. नेशनल एजुकेशन समिट में भाग लेने वाले सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो ज्ञान के साथ साथ कौशल दे, आत्मनिर्भर बनाए और युवाओं को रोजगार से जोड़े, जिससे हमें उद्यम कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को सशक्त बना सके. नेशनल एजुकेशन समिट में सहयोग करने वाली संस्था इंटरनेशनल कंप्यूटर साक्षरता पिछले 10 वर्षों से आईटी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. आईटी और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईसीएसएम के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं. उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है और बहुत सारे स्टूडेंटों ने अपना स्वरोजगार ओपन भी किया है. प्रिय मित्रों, आप सभी का कीमती समय निकालकर इस समिट में भाग लिया, इसके मैं आप सभी सहयोगियों, पार्टनर्स और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके बिना यह आयोजन असंभव था. हम सब संकल्प टीम को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं. जय हिंद, जय भारत. National Integrated Medical Association NEMA, सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत for the keynote address. Respected Dr. Muhammad Kasif, distinguished dignitaries, esteemed award recipients, and with proud families, respected educators, and honored guests, it is great honor for me to join you at the National Education Summit 2025, an honorary doctorate award ceremony. I extend my sincere gratitude to Dr. Kasif and the National Skill and Vocational Educational Council of Education and Skill Development. Each awardee, speaker and expert present here
represents dedication to communities. Throughout my 30 years of service in healthcare, constant. Education is not merely the transfer of information only. Yes, the transmission of capability, it is a transmission of hope also. When education equips the individuals programs for underprivileged youth, our mission has been to open doors. It is very true that true progress rests on inclusivity and opportunity. Let us to adapt with both compassion and courage. I am very much confident education and care. To the distinguished award recipient and their proud families, perseverance are what truly inspire. May you continue to guide students and communities towards purpose, achievement and service. I repeat, for creating a platform that celebrates not only what we do, but why we do it. It is very important. It is important than what we do, but why we do it. It is very important. Together, let us continue to light the path for future generation. खुशी की बात यह है कि जिस बच्चे को मैंने छोटे से को एजुकेशन दी थी एज एन टीचर को भी कि वंदना ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं लोग कहते हैं एक कहावत मैंने आई है, मैं डॉक्टर दुबे से भी डिस्कस कर रहा था कि ये बच्चे कहाँ से कहाँ हैं आज, तो मेरे लिए तो ये भी एक बहुत अब्रॉड इंडिया
के सिटीजन्स भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने किस तरह से इस पत्थर को तराशा होगा। मुबारकबाद है सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। और ये तालीम का ही ज़रिया है, ये तालीम ही है, ये तालीम ही वो शेरनी का दूध है कि जो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा कर देती है। मैं आखिर में एक बार फिर डॉक्टर काशिफ साहब को उनके मिशन के लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर उनकी कामयाबी की अपने खुदा से दामन फैला करके दुआएं करता हूँ कि काशिफ साहब जिस मिशन में चले हैं वो उनको खुदा उनको कामयाबी दे। और आज के जो प्रोग्राम है उसके लिए भी मैं दुआएं और अल्फाज के साथ मैं अपनी आवाज़ को बंद करता हूँ। एक बार फिर सभी को मुबारकबाद, सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। एक बार जोरदार तालियां। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि मंच पर हमारे साथ इमरान खान जी जुड़ेंगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि मंच पर हमारे साथ इमरान खान जी जुड़ेंगे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। सम्मानित किया जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बस जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारा अगला सेशन है बाय मिस्टर इमरान खान, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। So your work in technology driven solution is shaping in future of digital transformation. मैं चाहती हूँ आप स्टेज पर आएं for your technological session. एक बार जोरदार तालियों के बीच please put your hands together for Mr. Imran Khan. Very good afternoon. It's about to good afternoon to honorable dignitaries, respected guest, host, executive member of this event. I am Imran Khan, founder and CTO from Softcare Technology, one of hospital management software company. I thank to organizing committee of this event, especially to Dr. Mohammad Kashif, who has invited me. Because of he I am here, and it is a matter of pleasure for me that I am here to present a topic that is artificial intelligence in healthcare system. Is it working? Working? Intelligence is working towards in the healthcare system. Before proceeding in depth, what is the application of AI? I would like to focus on the basic what is AI. AI is nothing new. It was invented in 1956 by John McCarthy. It is a development and the use of computer program and algorithms, machines that takes input, process on the evidence-based data and gives you output result as a human being works. Tools is start working. So there is a vast discussion over why we are using AI, whether this AI may replace the human manpower. पहले कंप्यूटर कंट्री में आए थे तो कुछ लोगों का सोचना था कि शायद ये कोई जॉब या लोगों की मैन पावर को कम करेगा, लेकिन आज जहां हम खड़े हैं, जहां मशीन्स का ऐसा कुछ नहीं है, मशीन्स को आप चाहे जितने टाइम तक आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर एप्लीकेशन में एआई कैसे काम कर रहा है, और पूरे क्षेत्र में हमने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बल्कि एजुकेशन के चिराग को जलाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने रात दिन मेहनत की, कोशिशें की, फ्री कोचिंग क्लासेस चलाई और टॉप का रिजल्ट देकर के इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज ललियाना का प्रोडक्ट या कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में नहीं। बड़े बड़े मौके लिए कोशा है और जिस माहौल में जिस चीज़ की ज़रूरत है आज के माहौल में उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कंप्यूटर। मैं इन अल्फाज से उनकी हौसला अफजाई करूँगा कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में। और उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं,
हमारा काम जो समाज को आईना के ऊपर वाला उन्हें कदम ब कदम कामयाबी अता करता रहे और उन्हें उस मंजिल तक लेकर के जाए जहां तक कामयाबी अपने लहू के बाद और स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। का माहिर बना और आज उसी के जरिए से हर फील्ड में वो काम करता है। आज एआई टेक्नोलॉजी आई है, इससे भी 1000 गुना स्पीड से काम करने वाले अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी आने वाली है। आगे होती तो शायद सर जिक्र कर देते, वो आने वाली है, लॉन्च होने वाली है। तो हमें इन चीजों को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनाना है, बल्कि इन चीजों को एक बात जो प्रधानमंत्री जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका एक जुमला कि आपदा को अवसर में बदलिए। तो जितना हो जाए और जो भी टेक्नोलॉजी आए उसमें वो नंबर 1 है। हमारा मिशन है कि हम एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, पूरी दुनिया में नाम लेने की हम बात करते हैं, क्योंकि इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना, इल्म तुझसे बढ़कर कोई नहीं खजाना। जो मीडिया का जो यहाँ आज बड़ी तादाद में मौजूद है और ऐसे लोग यहाँ हैं, जैसे सर की बात करें, हमारी कोशिश एक नया समाज बनाने की होती है और जो काम हम बखूबी कर रहे हैं और हमारी स्पेशलिस्ट सम्मानित करने के लिए मोहम्मद कासिफ जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच पर आएंगे। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं आज हमारे बीच की आज का हमारा ये मोटो है दैट एजुकेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, एजुकेशन इज अ जर्नी। शिक्षा कोई मंजिल नहीं। Ladies and gentlemen, Dr. Mohammad Amin, his service to democratic institutions. शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सभी को मुझे बुलाया और मैं समझता हूँ कि हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं और कुछ सीख के जाएंगे और यही हमारे देश का भविष्य है। यानी देश का जो फ्यूचर है वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। इससे दुनिया में बहुत उम्मीदें हैं, देश और विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे बच्चों के, ये बच्चे जाएंगे और कहाँ हमारे देश की धरती का वहाँ पर जाकर रोशनी पैदा करेंगे। तो हर चीज़ आपको रोशनी की तरह दिखती है कि जैसे चिराग है। ये जो एजुकेशन एक चिराग है, अगर आप दिन आप इसको सोचेंगे कि क्या और कैसे और क्यों, इसका आंसर आपने अगर अपने आप दे दिया तो मैं नहीं समझता हूँ आपको दुनिया में कोई पीछे कर सकता है। और आपको पूरी तरक्की मिलेगी, पूरी हर जगह रिकॉग्निशन। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक है, दोनों जगह मैंने नौकरी की रिपोर्टेशन पे। उसके बाद मैंने लास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी किया और वहाँ चीफ ऑफ प्रोग्राम था और डायरेक्टर था। मैं उस कैडर से नहीं था, मैं फॉरेन कैडर से था, लेकिन उन्होंने कभी उतना डिटेल में बात नहीं की जितनी पब्लिक को समझाना चाहा, जो आज मैं समझाता हूँ और पूरी दुनिया देखती है, समझती है इस बात को। चाहे वो वीवीपैट हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो SIR हो। आज भी SIR का मुद्दा है शाम को। ये चीजें हैं, जिस चीज से या फील्ड से है उस फील्ड में एक्सेप्ट, मतलब अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो चाहे मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, मीडिया हो, कम्युनिकेशन हो, उसमें जम के मेहनत करिए और उसके अंदर रम जाइए। उसके बाद उसकी चीजों को देखिए कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और क्या हम लोगों को दे सकते हैं। जब आप यूपीएससी से आके गवर्नमेंट जॉब मिली है या टॉप क्लास में जाना, तो हर जगह कंपटीशन है। प्राइवेट जितनी एमएनसीज हैं, विदेशी कंपनी। सर के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और बहुत ही बड़े कार्य पद पर रहे सर। सर मैं चाहती हूँ आप मंच पर रहे, हम आपको। और आज हमारे साथ यहाँ पे एक और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जुड़े हैं जिन्हें मैं मंच पर अभी आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ यहाँ पे विशाल चावला जी मौजूद हैं, या सेल्स मैनेजर IDFC बैंक। मैं विशाल चावला जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहती हूँ सर एक कीनोट सेशन अगर आपके द्वारा भी हो जाता बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द लंच। वेल आफ्टर दिस विल मूव टुवर्ड्स द लंच। आई रिक्वेस्ट विशाल चावला जी टू प्लीज जॉइन अस फॉर द कीनोट सेशन। Thank you everyone. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. I am Vishal Chandra, present IDFC Pulse Bank over here. तो जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर हम लोग का ये सेशन चल रहा है। तो व्हाट वी डू इज दैट कि तो फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन में भी अगर एजुकेशन करना है तो उनके लिए पेमेंट्स करवाना या आपको एजुकेशन लोन्स करवाना फॉर योर बेनिफिट्स, so we can provide that solution from our bank. Not only that, in our bank we provide a saving rate of 7% interest where आप time हो गया। Thank you so much Vishal ji for joining us today. Thank you.
Well, now, ladies and gentlemen. को कुछ अल्फाज में पाना मुश्किल हो जाता है. नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, आई थिंक मॉरल एजुकेशन. इधर घुमाओ उसको, हाँ नीचे से, हाँ हो गया. जैसे हम देखेंगे, वेट वेट, लुक दिस साइड. पीछे चलो, तुम पीछे चलो. जोरदार तालियों के साथ स्वागत. Can we please put your hands together and welcome our chief guest for the National Education Summit, Huzatul Islam Qari Ziai Nyai Sahab, Chief Advisor Numenda Wali E Fakir from Iran. Sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत. We welcome you here at this grand event. We have been joined by Mr. Taqi Haider Naqvi, Director of the Life Foundation and Advisor from Iran. Well, now I request the chairman of NSVEC and the main house behind National Education Summit, I request Mohammed Qasim ji up the stage. Huzatul Islam Qari Ziai Nyai Sahab to please join us on the stage. We would like to felicitate you. I request Nyai Sahab to be. Education transcends border, cultures and nations, and today we are truly honored to have a global wisdom with us. Ladies and gentlemen, now we are starting off with the panel discussion as we mentioned. Beautiful event, and we are making sure each and every one of you, it's a celebrate and that the new chapter we write to the Education Summit 2025, recognized by a very welcome to each and every one of you, and thanks, welcome to each. Today we are discussing the effects of parents' involvement in the student behavior. मेरे साथ पैनलिस्ट और सामने बैठे हुए सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठे थोड़ा क्या काफी पीछे ले जा करके देना चाहूंगा. माता पिता की भागीदारी, उनके जितनी अच्छे विचार थे, जो सीखा था, चारों तरफ देखा था, उसी को बिफोर बर्थ सीखा, आफ्टर बर्थ उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाए वो आप सबके सामने है. जो चीजें हम लोगों के साथ होता है, एज ए टीचर बोल रहा हूँ, हम लोगों के साथ होता है 6 and maximum 6.5 hours.
17.5 आवर्स वो कहाँ होता है? सोसाइटी के बीच में होता है, पेरेंट्स के बीच में होता है। इसलिए ये कहना बहुत आसान है कि स्कूल का असर होगा उस पर, असर सोसाइटी का होगा, पेरेंट्स का होगा। पेरेंट्स का होता है सर Yes. इसमें जी। क्या होता है सर, जैसे बच्चे होते हैं, अभी क्या है कि जैसे बच्चे घर से सीखते हैं सब कुछ, जी। अभी क्या होता है ये जो मार्क्स है ये जिंदगी जीने का पैरामीटर ही नहीं है। ऑफ कोर्स सर, फिर भी क्या होता है कि पेरेंट्स टॉर्चर बहुत करते हैं बच्चों को मार्क्स को लेके सर। हाँ, ये एक सोसाइटी विल्स बोलूंगा मैं इसको। या रीजन, आप बच्चे को ये मत, हम बच्चे से ये तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चे से हम अपनी जो इच्छाएं होती हैं, अपनी ख्वाहिश होती हैं, हम अब ये उस पर थोपते हैं कि बेटा आपको आईएएस बनना है, बेटा आपको आईपीएस बनना है, लेकिन क्या हमने कभी बच्चे से पूछा है कि उसके मन में क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर, उसका रोल मॉडल क्या है? साइंस को लेके भी बच्चों को मैथ ही नहीं, आप साइंस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, ये अभी NEP 2020 ने खत्म कर दिया है। ये आने वाला साल जो है ना, उसमें हम बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, अकाउंट भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, इसमें रहेगा सर, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, नॉलेज चीज़ का जैसे पेरेंट्स की भागीदारी कैसी होती है, इसका कंक्लूजन मैं पहले अपने से ही दे देता हूँ। जी सर। बंदा जी, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति था। मेरे फादर हाई स्कूल पास थे और मदर मेरी इंटर थी, जो मेडिकल सुपरवाइज़र थी। मेडिकल सुपरवाइज़र से रिटायरमेंट हुई। मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान था और उन्होंने ऐसे क्षेत्र में रह करके, आप समझ सकते हैं, जिनके फादर हाई स्कूल पास हों, मदर इंटर पास हों और 1500 की नौकरी गवर्नमेंट की स्टार्ट करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर बना करके 4 बार आईएएस को क्वालिफाई कराया। और इस समय मैं कमला नेहरू पीजी कॉलेज तेजगांव में केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। आप सबके सहयोग से पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और CBSE स्कूल के 3-4 ब्रांचेस में चला रहा हूँ। तो ये क्योंकि मैं तो रूरल से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं बहुत चीज़ों को फेस भी करता हूँ। पहले मैं पेरेंट्स से आता हूँ, तब स्कूल पे चलता हूँ। पेरेंट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके हार्मोनल चेंज होते हैं, बच्चा अपनी मनमानी करने का प्रयास करता है। जब बच्चा अपनी मनमानी करने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको अपने बराबर का दर्जा देना शुरू कर देता है। बराबर का दर्जा देना तो अच्छी बात है, बच्चा बड़ा हो रहा है। एक देहात में कहावत कही जाती है, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग और सब तो बगल में बैठे हैं, आप तो बहुत सीनियर हैं, कि बच्चा हो आप बराबर, उसको समझो बाप बराबर। वो तो सही है, परंतु उसकी सोच के साथ अगर अपनी सोच को मैंने मेल कर दिया, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे आप गलत हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, बट इसमें क्या होता है कि सर कभी-कभी बच्चा उसके गलत डिसीजन भी लेने लगता है, वो पेरेंट्स को पूछता भी नहीं है, जबकि वो खुद से डिसीजन ले लेता है, बहुत सी डिसीजन। जी बेटा जी, तो मेरे कहने का मतलब नई ऊर्जा होगी। और मैं चाहता हूं कि इस समिट में आए हुए जितने हमारे साथी हैं, निश्चित तौर पे जा करके अपने यहाँ जा करके पेरेंटिंग करेंगे, पेरेंट्स को बुला करके एक बढ़िया पेरेंटिंग कर करके और उनको एक नई ऊर्जा देने का काम करेंगे। क्योंकि वंदना मैम आपकी टीम तो बहुत ही ऊर्जा देने का काम करती है। और तो अगर ऐसी सोच लेकर के अपने बच्चों को मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैम, मैं प्रोफेसर संगीता दया मैम से रिक्वेस्ट करूंगी। या मैम आप बताएं, फर्स्टली मैं चाहूंगी कि आप अपना। मेरा नाम डॉक्टर संगीता दयाल है। मैं एज ए एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले इस बहस के टॉपिक पर ध्यान दिलवाना चाहूँगी सब लोगों का। जी मैम। कि क्वेश्चन क्या है ये? द इफेक्ट्स ऑफ पेरेंट्स। क्वेश्चन क्या है कि हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है एक बच्चे स्टूडेंट की लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट का क्या रोल है? क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि हम इस क्वेश्चन को एक एजुकेशन समिट में डिस्कस करेंगे? क्या ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है? एक्चुअली मैम है इसमें। एक्चुअली है, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका है। सिनेरियो क्या चेंज हुआ है? जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, आज सिर्फ हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशन समिट। यस मैम, यस मैम। बट
मैं सबको वेलकम करना चाहूँगी, जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं, चीफ गेस्ट हैं। हमारे पास सामने कुछ बच्चे अलग अलग एज के नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं उनके, तो मैं सबको वेलकम करना चाहूँगी एज ए पेरेंट्स। वो वैल्यूज वो पेरेंट्स से ही सीखता है, नो डाउट। यस स्कूल्स का अगर ये सवाल होता कि स्कूल का क्या इसमें पार्टिसिपेशन है, तो मैं उसमें बात करती। जब वो इस संसार में आता है एक छोटा बच्चा बन के, तो हमारी पेरेंटिंग वहीं से शुरू हो जाती है और एजुकेशन भी वहीं से शुरू हो जाती है। जब बच्चा स्टूडेंट बनेगा, वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी उसके स्टूडेंट बनने तक। एक्चुअली मैम क्या होता है, जैसे आपने बोला, ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं। पेरेंट्स क्या होता है, हम लोग अगर रूरल एरिया में जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगी, करते हैं एक बच्चे को एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए, तो साथ साथ उन बच्चों को भी हमें लेके चलना पड़ेगा, जिनके माँ सर भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए। एक्चुअली ये मेरे टीचर है। मैं आपको बताना चाहूँगी रूरल एरिया में क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट कहते हैं अगर क्लास में कॉमन होता है। मुझे बोलने दीजिए। जी जी श्योर श्योर। अगर आप रूरल एरिया की बात कर रही हैं कि बच्चे 30% ही पढ़ते हैं, 70% तो अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए उसके पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन जरूर आता है। पेरेंट्स अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आप बच्चे को ये कहना चाह रहे हैं कि आप IAS बनिए फ्यूचर में, डॉक्टर बनिए या वकील कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर देना, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर आप उसको बताएंगे नहीं कि IAS होती क्या चीज़ है, तो वो जानेंगे नहीं कि वो भी कुछ हो सकती है कैरियर में, हम कुछ कह सकते हैं। श्योर है कि गलत दिशा में जाएगा, और अगर बच्चा गलत दिशा में गया तो जैसे अपने पहली बात तो जो मदर और फादर होते हैं, उनको भी बच्चों के साथ उन सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि बच्चा। बट सबसे ज़्यादा तो ये है कि एक मदर और फादर को प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। क्या होता है कि आजकल ये सोशल मीडिया के ज़माने में क्या हो रहा है कि बच्ची कोई रील बना रही है, ठीक है, और पेरेंट्स उसको लाइक कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है सर, अभी के आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो क्या है, बच्चा फोन से ज्यादा कनेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा अपना पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन रील बना रहा है। अगर एक रील उसका फेमस हो रहा है तो पेरेंट्स उसको पढ़ाई की तरफ नहीं, उसको रील की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं सर। यही है। तो इससे क्या है कि अपना धीरे धीरे कल्चर भी खत्म हो रहा है। ये सर, ये और बच्चा पढ़ाई की, और ये मैडम एक सब चीजें अस्थायी तक है, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो बच्चे को ऐसे कुछ संस्कार या ऐसे कुछ अपन उसकी आदतें डालें जो उसको भविष्य में लॉन्ग टर्म तक ले जा सके। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर कश्मीर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे, देन हम बात करते हैं पैनलिस्ट के बारे में। बैठ किया है। मैं कश्मीर सिंह हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। मैं एजुकेशन लाइन में 20 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, मेडिकल लाइन में, जिसमें मैं एनवायरमेंट और इन्फेक्शन। प्लीज चेक द माइक। सर प्लीज। मैं एजुकेशन के लिए थोड़ा अपने आप को कम महसूस कर रहा हूँ कि मैंने यार एजुकेशन की नहीं, मुझे एजुकेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो मेरे माँ बाप ने मुझे और ऑनलाइन एजुकेशन हो गया घर से। जैसे बच्चा बैठ रहा है, रोटी खा रहा है, या मुँह धोया नहीं गया, सुबह उठा बैठ गया, किताबों में चिपक गया, लेकिन वो प्रॉपर जैसे हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रहा। अपना मान लो उठना, उसने खाने का कोई ध्यान नहीं। तो मेरा तो और तब उसने कंप्यूटरों पे लगा हुआ टच पे, और जो उसकी थोड़ा मन में पढ़ते पढ़ते कुछ हो जाती है, वो आपटा जाती है। कितनी देर पढ़ेगा इंसान? 2 घंटे पढ़ते पढ़ते पढ़ता बोर हो जाता है। तो थोड़ा हेल्थ में एक्सरसाइज करें, मोटिवेट करें अपने आप को। यस। और जो एजुकेशन हम अभी हमारे मोहम्मद रसीद दे रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने थैंक यू सर। प्रोत्साहित किया और आगे भी करता रहूँगा मैं। यस सर, यस सर। 2 ईयर से जुड़ा हूँ उनके साथ। यस। मैं आगे चाहता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर इनको साथ दूँ जी। और हमारे बाहर से आए हुए मेहनवाज हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा हम इस नेशनल एजुकेशन का साथ दें और शोक दें, इनका भी मार्गदर्शन करते रहें और इनका भी मान बढ़ाते रहें। थैंक यू। सबकों के साथ में अपना Okay, thank you sir, thank you. Then the discussion we have today to do with the student behavior, which can be impact of the student behavior. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you panelists. Thank you sir. So let me at the beginning of my
speak, let me have this question. Can I speak in English, and is it acceptable to speak English, and everyone would be acceptable for him or her this language? Having me in this very important and great event, and because the subject of this summit is education and skill, and this organization is doing its best to go toward this very important goal. Let me, because I am the assistant of the representative of Islamic Republic of Iran's Supreme Leader. When the Prophet of Islam migrated from Mecca to Medina, after 13 years, he migrated to Medina. The enemies, they attacked this city. And there was a battle named as the Badr battlefield. And this battle, some of the soldiers from the enemy's side were captured by the army of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, by the army of Islam. It is recorded in the history. You can refer to the resources and study more about this event. There was a discussion amongst the victorious side of the battle. What shall we do with these captives? There were some ideas that we have to kill them to show that we are superior and we are victorious now. But the Holy Prophet, having the words of the Almighty in his life, he said, no, this is not the decision. The final decision was that whoever of these captives who is able to teach 10 Muslims to read and to write, or whoever of these captives who be able to teach a skill to 10 of the Prophet, and his life is a source for us as Muslims and as human beings. That even if you are victorious in the battlefield, Muslims would kill those captives. No one would say that they are, blameful for this, because at that time it was very common to kill the, captives. But because the main mission of prophets is not killing human beings, but is to inform them, to increase the knowledge amongst mankind for human beings. So that's why we see that in every different aspect of the Holy Prophet, His Highness is highlighting the importance of knowledge. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered the mosque in Medina, the main mosque, Masjid al-Nabawi, that these times is also present in Madinatul Rasul in Saudi Arabia. His Highness witnessed that there are two groups of Muslims gathering. The first group are praying and adoring the Almighty, doing worship. Because the mosque is the place for worship. And the second group, they are gathered and they are having a scholarly discussion. Now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were discussing about a scholarly discussion.
This is the implementation of the teaching of the Almighty. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Thank you very much for having me, and I hope that inshallah this summit will be very, promoting in the very close future, and inshallah have a good cooperation inshallah with each other. Jazakumullah khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Can we have the music? इसके बाद हम अपने अवार्ड शुरू करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे अनदर गेस्ट जो ईरान से हैं, सैयद सादिक अल हुसैनी साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं, डायरेक्टर तकरीब काउंसिल। आई रिक्वेस्ट। नमस्कार, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन। मुख्तसर टाइम, बहुत संक्षेप में, बचपन में हम सब ने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, सुना है, याद भी होगा सबको। चूँकि ये जो प्रोग्राम है आप सब को वाक़ई दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि जहाँ इल्म और इल्म सिखाने वाले और इल्म, तालीम, शिक्षा देने वाले की ज़रूरत, अहमियत और उसके संस्कार कैसे होने चाहिए, उस पर डिटेल से आप लोगों ने बात की। तो क्यों ना हम वो चंद दोहे जो सबके दिमाग में होंगे कबीरदास के, गुरु गोविंदो खड़े काको लागे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पॉइंट की तरफ कबीरदास जी ने इस पर तवज्जो दिलाई कि दूसरे दो मिसरे और हैं दोहे के कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। जब हम इल्म, तालीम, शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की, तो उसमें सबसे इस खाक से, इस ज़मीन से जो सीखा है वो ये है, इस कबीरदास के दोहे में। और ये बात तन्हा कबीरदास नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रोफेट हज़रत थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं चाहती हूँ आप अपने रिसीव्स लें। रहनी चाहिए हज़रत आप 84 अंश के लिए। सर प्लीज कैमरा में देखेंगे फॉर द ग्रुप पिक्चर। अभी हमारे रेसिपिएंट हैं ऑनरी डॉक्टरेट के कश्मीर सिंह जी। CSSD Manager, Capital Hospital, Jalandhar. नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे रेसिपिएंट ऑफ द ऑनरेरी डॉक्टरेट डॉक्टर सुशील यादव जी डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। डायरेक्टर हैं श्री
सेंटर में आएंगे प्लीज ऑल द अवॉर्डीज। नेक्स्ट हमारे रेसिपिएंट हैं हेमंत कुमावत जी, ऑनरी डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड एजुकेशन के फील्ड में। हेमंत कुमावत। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर साजिद हुसैन जी को, ऑनरी डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं यूनानी साइंस के फील्ड में। मिस्टर साजिद हुसैन। And congratulations and ढेर सारी शुभकामनाएं to all the ऑनरी डॉक्टरेट अवार्डी। नेक्स्ट हमारे बीच में मिस्टर इंसाफ अली जी मौजूद हैं, ऑनरी डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टेज के पास ही रहें। Congratulations, sir. Mr. इंसाफ अली जी का मंच पर स्वागत। ऑनरी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं देखती हूँ तालियां नहीं बजा रहे हैं आप लोग हमारे बॉडीज के लिए। नेक्स्ट है मिस्टर अनंत कुमार मयंक, ऑनरी डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं यहाँ मैनेजमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में। रिसीविंग द ऑनरी डॉक्टरेट मिस्टर अनंत कुमार मयंक, ऑनरी डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। हमारे बीच में डॉक्टर विनायक संभाजी मेघे मौजूद है, ऑनरी डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट एंड सोशल सर्विस, समाज सेवा के लिए और मैनेजमेंट के लिए हासिल कर रहे हैं ऑनरी डॉक्टरेट। डॉक्टर विनायक संभाजी। सेंटर में प्लीज आ जाइए, कैन यू प्लीज कम एट सेंटर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मुज़फ़्फ़र इस्लाम अली साहब का कि आज आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। तो वक्त की कमी है सर, आज हमारे साथ यहाँ जुड़ेगी। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज। हासिल कर रही हैं मैनेजमेंट एंड हेल्थ के क्षेत्र में। और हमारे बीच से हमारे चीफ गेस्ट यहाँ विदा ले रहे हैं। Like to bid farewell to him for the thank you so much for joining to the National Education Summit 2025. सर थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए।
Inshallah, waiting to meet you. Announce the director sir, the details. Inshallah. इसके बाद हमारे साथ यहाँ पे मोहित कौशिक जी मौजूद हैं, ऑनरी डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट एंड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे डॉक्टरेट अवॉर्डीज हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप बाहर मीडिया बाइट्स वाले स्टैंड पे चले जाएंगे, इंटरव्यूज चल रहे हैं वहाँ पे, प्लीज बाइट्स देने के लिए जिन्होंने अवार्ड्स मिल लिया है अभी तक। डॉक्टर मोहम्मद काफी, हमारे बीच में विकास कुमार मौजूद है, ऑनरी डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं, डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट एजुकेशन। विकास कुमार जी प्लीज स्टेज पे आएंगे, रिसीव द ऑनरी डॉक्टरेट। थैंक यू। फिर यहाँ से खत्म हो गए ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड्स और अब हम शुरू करेंगे नेशनल एजुकेशन समिट अवार्ड्स। एंड नेक्स्ट हमारी अवार्डी है आशा यादव, नेशनल एजुकेशन समिट बेस्ट डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। आशा यादव। हेलो, अरे ताई को फोन कर लो, ताई का फोन आया। कौन सी चिट्ठी आई है? सेंटर में आ जाओ भैया, सेंटर में। थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे आप लोग, सेंटर में आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए। हाँ जी, थैंक यू। Thank you, Shreya sir, for your contribution and for coming here. We'd like to felicitate you on behalf of National Education Summit 2025, NSDEC. I request Mohammed Qasim sir to please do the honors. And next set of awards देने के लिए मैं Mr. Imran Khan sir को request करूँगी स्टेज पे आएंगे, CTO, Software Technology. सर इधर देखिए कैमरा में। I request Mr. Imran is here. थैंक यू।
शायद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। साउंडिंग अप डाउन से तालियां बजाते रहिए ताकि ये पता चले कि आप प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ हर एक अवॉर्डी को। नेक्स्ट वी हैव मिसेस तपस्या त्यागी नेशनल एजुकेशन अवार्ड फॉर बेस्ट ब्यूटी एंड वेलनेस एजुकेटर अवार्ड। तपस्या त्यागी। मैं नेक्स्ट हमारे अवार्ड को बुलाना चाहूंगी मोहम्मद शोएब नेशनल एजुकेशन अवार्ड फॉर बेस्ट कम्युनिटी टीचर इन इंडिया। मोहम्मद शोएब। थैंक यू। सर आपने हमें ज्वाइन किया स्टेज पे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद जी मौजूद हैं यहाँ पे। मैं उनको मंच पर रिक्वेस्ट करूंगी वो आएंगे। He is a member of Ministry of Education. I request जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर जावेद जी के लिए। Member of the Standing Council for Ministry of Education. सर एक बार कैमरा साइड देखेंगे। अरे पहले दे तो लेने दे। थैंक यू। यस सर कैमरा साइड। अब नेक्स्ट मैं चाहती हूँ जावेद सर आप स्टेज पर हैं ताकि आगे के अवार्ड दे सकें। प्रोफेसर संगीता दयाल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही बखूबी उन्होंने पैनल डिस्कशन पे अपनी बातों को साझा किया और रखा हमारे साथ। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी अवार्डीज हैं जिनको अवार्ड्स मिल गए आप प्लीज बाहर जाइए फॉर मीडिया बाइट्स। वहाँ पे मीडिया स्टैंड है जहाँ पे आपको अपने बाइट्स रिकॉर्ड कराने। कैमरा साइड देखिए। कैमरा साइड। नेशनल एजुकेशन अवार्ड लेके जा रही हैं फॉर बेस्ट एजुकेटर इन इंडिया मिस सोफिया। थैंक यू। Dr. Brahma, this is for you and this is by you and for you. सौभाग्य है मेरा कि तुम मेरे साथ हो। ईश्वर की दी हुई बहुत अच्छी सौगात हो। माना कि ये अवार्ड प्राउड की बात है, पर प्राउड और भी हो जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में इस अवार्ड के साथ हो। थैंक यू ब्रह्मा और थैंक यू Thank you, Dr. Kashif, for a wonderful event. Thank you so much. Keep it up and all the best for your endeavor. हाँ जी इधर कैमरा साइड देखेंगे। थैंक यू। Sophia, I request you to please wait. I'll provide it. Next is Dr. Shehbaz Ashraf, National Education Summit Award for Best Director in India.
Dr. Shahnaz Ashraf. मैं चाहती हूँ जमीर अहमद जी आप भी स्टेज पे आए, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, जमीर अहमद जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जमीर अहमद जी से रिक्वेस्ट करेंगे सर आप भी स्टेज पे आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपका। अब आगे की आवाज देने के लिए मेरे पास जमीर अहमद सर आप रहेंगे। अनवर आलम जी से रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पे आएंगे। एजुकेशन समिट अवार्ड्स में बेस्ट कंप्यूटर टीचर का अवार्ड लेके जा रहे हैं अनवर आलम जी। Next we have Mr. Salim, National Education Award for the best computer teacher in India. Mr. Salim. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर आपने ज्वाइन किया। मैं अली मुख्तार जी को रिक्वेस्ट करूंगी उस स्टेज पर आएंगे प्लीज अवार्ड देने के लिए। नेक्स्ट हमारे अवार्डी है अजहर, मिस्टर अजहर, नेशनल एजुकेशन समिट अवार्ड फॉर बेस्ट डेवलपर। हम सबके एक एक हैं। मिस्टर अजहर। नेक्स्ट में इनवाइट करूंगी मिस्टर हासिम अली जी को, नेशनल एजुकेशन समिट अवार्ड फॉर बेस्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हासिम अली जी। हासिम अली। Next we have Miss Varsha, National Education Summit Award for the Best Director. Miss Varsha. I request Shadab ji आप please stage पर आइए to give the awards. Miss Varsha, National Education Summit Award for the Best Director. और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं यहाँ पे कुछ अवार्ड्स हैं जो हम ऑनरी डॉक्टरेट के अनाउंस करने वाले हैं। जी कैमरा साइड देखेंगे। थैंक यू। Shubham Das, honorary doctorate in education and science, and Sikho Jam Kipjen, doctorate in management and education. They're not here, they are getting the awards online, they are not here at the moment. With this, we are done with the awards. Thank you. Thank you so much, Shadab ji, for joining us on the stage. मैं आपको बता दूंगा
डॉक्टर संतोष सुंदर जी हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं आज के। नेशनल प्रेसिडेंट है आयुष भारत डॉक्टर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र से आए हुए हमारे साथ यहाँ जुड़े। हाँ जी, सामने देखेंगे। We would like to extend our thanks to few people. I request Mr. Anshul Chauhan, Tech Manager, Point Gate Media. आप प्लीज हमें ज्वाइन करके चले जाएंगे। Mr. Anshul Chauhan, Tech Manager. Mr. Anshul Sharma, Software Developer, Source Soft Private Limited. Ikram Chaudhary, Chief Editor, News National Channel. आप प्लीज आते जाएंगे स्टेज पे। अहमद रिजवान, रिपोर्टर दैनिक भास्कर। राव जफर अली, चीफ एडिटर दैनिक शाह बुलेटिन। शावेज हुसैन जैदी, चीफ एडिटर फेस टुडेज नेशनल न्यूज चैनल। सामने देखेंगे सर, कैमरा साइड। यस, ग्रेट, थैंक यू। हाँ जी, कैमरा साइड, थैंक यू। Thank you. Mr. Hossein Azam, reporter, the news volunteer. Javed Malik ji, member Ministry of Education, Government of India. अच्छा चलेगा। Zahid Ali ji, reporter, National Voice Channel. Please one by one आते रहेंगे स्टेज पे। Javed Malik ji जा चुके हैं। Zahid Ali ji, reporter, National Voice Channel. Thank you. हाँ जी। सर कैमरा साइड देखेंगे। थैंक यू। Nafees Ali ji, I request Nafees ji please stage right. Abdul Ahad ji, Principal, Gafuri Memo Inter College, Uttar Pradesh. Great. Thank you. Abdul Ahad ji आप मौजूद हैं। जामिर अहमद चौधरी जी, एक्स आर्मी सूबेदार मेजर। साथी स्टेज पर आएंगे थोड़ी सी वीडियो। मोहम्मद आमिर, जॉइंट एडिटर डेली ट्रुथ सर्च। थैंक यू। जी कैमरा साइड। अली मुर्तजा जी, डायरेक्टर विजन अग्रसर भारत। यस सर, कैमरा साइड। अली मुर्तजा जी, डायरेक्टर विजन अग्रसर भारत। डॉक्टर शादाब जी से रिक्वेस्ट करूंगी आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइफ केयर पार्क कैटलैब्स। डॉक्टर शादाब सर सेंटर में होइए थोड़ा सा। थैंक यू। अब्दुल अहद जी से रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर आएंगे, प्रिंसिपल गफूरी मेमोरियल कॉलेज उत्तर प्रदेश। वेट सर, कैमरा साइड। फ्रॉम ICSMD। थैंक यू। जया
Next we have Aarti from the hotel team. Thank you. Aarti is here. मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ। मैं मिस्टर मोहम्मद कासिम डॉक्टर साहब जो हैं ये एजुकेशन समिट जो सेकिंग अपना मना रहे हैं, मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ कि जिन्होंने मोहम्मद कासिम की जो जर्नी के समय में मैंने काम किया है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक मेरे साथ में एक ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसा सपना देखा। हम लोग एक छोटे से सेंटर चलाते थे और वहाँ से हमने सपना देखा था कि हम अपने इंस्टीट्यूट बनाएंगे और उसको पैन इंडिया पे लॉन्च करेंगे। तो पहले मुझे बात बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर कासिफ ने अपनी काबिलियत के दम पे, मेहनत के दम पे, एक किसान परिवार में जन्म होने के बावजूद और हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद इस प्रोग्राम की नींव रखी और उन्होंने अपने सपने को साकार किया। आज जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इन्होंने पैन इंडिया में लगभग 1100 अपने सेंटर बनाए हैं, जिसमें ये अपने जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन, कंप्यूटर और मेडिकल साइंस की एजुकेशन देगा। तो ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि इन्होंने एक ऐसे चिराग को रोशन किया है कि जिसकी कल्पना हमारे जैसे क्षेत्र में बहुत कम ही यंगस्टर लगाते हैं, क्योंकि इस भागदौड़ की ज़िंदगी में सब पैसे के पीछे हैं, लेकिन इन्होंने लोगों को कामयाब करने, लोगों का मुस्तकबिल बनाने के लिए इस पौधे को इन्होंने रोका। और इस समिट के बारे में उनके लिए विचार आना और उसको साकार करना, ये मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं इन सब लोगों के साथ में मैंने काम किया है। मैं फिर भी सभी मेहमानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर इस समिट में किसी को कोई परेशानी हुई हो, तो मैं अपने छोटे भाई की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे छोटे भाई का ऐसे ही आप हाथ पकड़कर ऐसे ही इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Murtaza ji. Well, I request Mohammad Qasim ji अपनी स्टेज पे वापस से आएंगे। वंदना, can you please come on stage? And कुछ थैंक यू अवार्ड्स हैं जिसके साथ हम इस इवेंट को समाप्त करेंगे। आप few more awards. Next we have Larson and Aniket from Geo Holidays, जिन्होंने ये इवेंट एग्जीक्यूट किया। Thank you. Now over to you, Vanu. Sir, camera like yeah, sir. Wait, sir, camera side. Thank you. Mohammad Ashraf Ali, reporter, DD News India. Mohammad Ashraf Ali ji. Thank you to Muzahid, Sir, Shahrukh. camera side. Sir, camera side देखेंगे. Thank you. मुजाहिद जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खड़े रहें। जी सर, कैमरा साइड देखेंगे.
गैस यहाँ मौजूद है सर। नेक्स्ट मैं शाहरुख जी को इनवाइट करूंगी मंच पर। शाहरुख जी, क्या शाहरुख जी यहाँ मौजूद है? शाहरुख जी मौजूद है? सुजात जी, मिस्टर अशरफ, थैंक यू। मिस्टर अशरफ, सारे गेस्ट शदाब जी, अली मुर्तजा जी, हमारे साथ जितने भी गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। आपको इस साइड आना पड़ेगा। इसमें आपके नेम्स हैं सर। आपके पास जो ऑडिट डॉक्टरेट रिसीव हुई है, आप प्लीज उसको ओपन करें। चलो फोटो ले। कैमरा साइड देखेंगे सारे। वेट। थैंक यू। Thank you everyone, and I request Mr. Shashank Bhargav on the behalf of Radisson Blue. वेट कर लियो, एक घुमाऊंगा, ठीक है? बोलिए सामने देखने के लिए, बस ठीक है, एक बार वेट कर। ठीक है, डन है। थैंक यू। Thank you. I request Mr. Shashank Bhargav to please walk on the stage to get the thank you. कहाँ देखते हैं? देखिए तो यार। ऑटो को लाइक मानो तो मेरी ये भेज दे। जल्दी से रख करते ये जो भागेगा करते ये आगे छोटा आ गया। Hello, ladies and gentlemen. With this, I request media bites जिन्होंने अभी तक नहीं की है, तो बाहर जैसे आप एग्जिट लेंगे वैसे ही आप देखेंगे वहाँ पे एक मीडिया स्टैंड है जहाँ पे सारे अवॉर्डीज को अपनी बाइट्स देनी है जिन्होंने ऑडिट डॉक्टरेट अवार्ड रिसीव किया है या फिर अवार्ड रिसीव किया है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वेट, थैंक यू। आवाज चाहिए, आवाज। क्लोज अप। Yeah, look this side. Please look in camera. Thank you. Thank you. Come to close. Look this side, sir. Sir, please look this side. Excuse me, sir. Wait. Thank you. High tea open, I request everyone to please go and have your high tea. Tea and snacks लग गए, so I request आप सब बाकी लोग please join me for tea and snacks. Thank you. Yes. आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज चाय के लिए पीछे जाएंगे। चाय और नाश्ते का इंतजाम हो गया है। थैंक यू। Thank you. Now, I would like to Miss Nidhi ma'am. Please come on the stage. Nidhi